अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। Ariba, can you hear me? Hello. Hello. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। Matrices topic is going on, right? Hello. Hello. यस सर। सुने आ रहा, दोनों को भी सुने आ रहा? यस सर। यस सर। Okay, we are going to discuss today how to find out the eigenvalue and corresponding eigenvector. So we'll take one small example. देखिए एक क्वेश्चन लेके इसमें मैं सॉल्व करके बता रहा हूँ आपको आइगन वैल्यूज आइगन वेक्टर कैसा करते हैं। पर एक क्वेश्चन है एंड यू शुड राइट अलोंग विथ मी आल्सो। फाइंड द आइगन वैल्यूज। आप दोनों में से कोई तो भी कॉलेज में है क्या? नहीं नो सर। सर। करस्पॉन्डिंग क्यों आज लैब्स नहीं है कुछ भी? हम लोग को तो नहीं है सर कुछ भी इंफॉर्मेशन। रोल नंबर 1 to 40 के लिए 40 to 60 फिजिक्स लैब है। अब अरीबा तो नियर बाई ही रहते हैं, आप कहाँ पे रहते हैं? मुसरम्बा। अच्छा 1 - 2 ये 2/2 का एग्जाम्पल अक्सर मतलब पर्टिकुलरली ये क्वेश्चन नहीं, अभी मैं आपको कल एक क्वेश्चन पेपर भी भिजाया था ना। हाँ सर। उसमें देखिए अक्सर एग्जाम में शॉर्ट आंसर्स में फाइंड द आइगन वैल्यू एंड करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर बोल के एक 2/2 की मैट्रिक्स दे रहा है। तो एक 2/2 मैट्रिक्स में भी अपन 3/3 मैट्रिक्स में भी रिपीटेड आइगन वैल्यूज नॉन रिपीटेड आइगन वेक्टर सब में कैसा फाइंड आउट करते हैं आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर आज की क्लास में अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है? ओके। So here, first of all, the step number 1 is we have to find out its a characteristic equation. The characteristic equation of A is the formula is under the modulus of A minus lambda into capital I and then modulus equals to 0. So when we are going to simplify such this type of determinant A minus lambda I, so there is a change in diagonal only, so it will be like this 1 minus lambda, this minus 2 as it is, minus 5 as it is, this is 4 minus lambda, this modulus equals to 0. ठीक है ना? So how to find out the determinant of this 2/2 matrix? AD minus BC। AD minus BC. Ariba, are you there? यस सर, आई एम देयर। I should give me the answer. Only 2 students are there. So 1 minus Okay. lambda into 4 minus lambda. This is AD minus minus into minus plus 5 2s are 10 is equals to 0. Now if you proceed by solving this 4 1s are 4 minus lambda 1s are lambda minus 4 lambda plus lambda square minus 10 equals to 0. If you simplify
lambda square as it is. This is minus 5 lambda minus 6 Lambda equals to 0. Okay, so if you know the process, by solving these factors we are getting, and we should get like this: lambda minus 6 into lambda plus 1. याद था ना करने आप लोग को? Yes, sir. हाँ. What are the values of lambda now? Finally, lambda minus 1 values are comma 6. minus 1 comma 6. ये डिस्टर्बेंस किसके पास से आ रहा? Therefore, the eigen values are क्या है? eigen values कितना है अपने को? What are the eigen values we are getting? 2, minus 6, 1 comma comma minus 1. So what is the order of the given matrix? That many eigen values you will get it. 3 by 3 की matrix है तो 3 eigen values आते हैं. 2 by 2 matrix है तो 2 eigen values आते हैं. Now for each eigen value we have to find out its corresponding eigen vector. So already case 1, let capital X, that means I am representing with x1, is equals to xy. अरीबा, मैं थोड़ा सा अलग वे में बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको फिर से एक बार. Yes, sir. लास्ट क्लास में अपन x1 x2 x3 ऐसा लिए थे. अभी थोड़ा सा मैं डिफरेंट वे में जा रहा हूँ और अच्छा समझाने के लिए. x1 is equals to xy be the corresponding eigenvector. Be the corresponding eigenvector. Be the corresponding eigenvector. So here this one eigenvector के लिए फॉर्मूला a minus lambda into capital I into capital X1 and then equating to 0. So कैसा होता है ये देखिए, it should be in a matrix form. Okay, and here this is the matrix. Again ये पूरा matrix form में लिखना है आपको. So what happened here is, suppose the lambda value is, we are taking, suppose the case 1 we are dealing, suppose lambda is equals to 6. If suppose lambda is equal to 6, this lambda is equal to 6, we substitute here. 1 minus 6 becomes minus 5. Minus 5. right here minus 5. This is minus 2 again as it is. This is minus 5 again as it is. And the same lambda is equal to 6 if you substitute here. minus 2. Minus 2. Minus 2. And here corresponding eigenvector we are assuming x comma y and equating to the zero or null matrix. Now if you notice this matrix, what will happen here? आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे? We are getting Same. both of the rows are identical. Okay, तो आप यहाँ पे कोई भी ऑपरेशन पॉसिबल है ना इसको ऑपरेशन अप्लाई करने का? इसको क्या बोलते बोला था मैं? अरीबा, इसका नाम क्या दिया था मैं? Beautiful equation. ब्यूटीफुल रोज. ओके, अगर इसको इक्वेशंस बना के अपन उसको ऑपरेशन Rows. अप्लाई कर सकते हैं ना. R2 चेंजेस टू बोलो R2 माइनस R1 कर सकते हैं ना. Yes. कोई भी एक रो को जीरो बना सकते हैं ना अपन. Yes, sir. Yeah. रिलेशंस दिख रहा ना वहां पे. Yes, sir. 5 minus 2, this is 0, this is 0, and this is xy as it is. This is equal to 0 0 as it is. Now if you multiply row column matrix method, minus 5x minus 2y is equals to 0. This is the only equation we should get it. दूसरी इक्वेशन नहीं बनती ना इसमें. Yes, sir. Okay, so if you multiply with minus sign, we will get it what? 5x plus 2y is equals to Plus 2y. 0. 0. So and this can also be written as 5x is equal to minus 2y. ठीक है, अब इसको ऐसा इक्वेशन बना के सॉल्व करेंगे. ये -2 कोएफिशिएंट we should divide with this x, and this 5 we can divide with this y, like that.
suppose this value is equals to, we are assuming suppose some variable k. Okay, then what is x value? X value is minus 2k, minus 2k, and what is y value? 5k. 5k. Now in the special case, if Five. सपोज k की वैल्यू सपोज 1 अगर अपन ले रहे, k की वैल्यू अगर 1 ले रहे, तो x क्या बन जाता? -2. y क्या बन जाता? 5. 5. Then what about this matrix? Capital X1 becomes -2, 5. -2, 5. Minus 2. तो आपको एक क्वेश्चन अराइज हो सकता सर, k की वैल्यू 1 इसका को ले रहे हैं अपन, k की वैल्यू 2 ले लेंगे ना, तो ले लीजिए आप, 2 भी ले सकते हैं, 1। तो मेरा बोलने का मतलब ये है, फॉर द वैल्यू लैम्डा इज इक्वल टू 6 यू विल गेट इनफाइनाइट नंबर ऑफ आइगन वेक्टर्स। मतलब k की कैसे कितना कितना वैल्यू चेंज करते जाएंगे, इससे वेक्टर्स बनते जाएंगे आप। ठीक है, k वैल्यू 0 भी ले सकते हैं आप, k वैल्यू 5 भी ले सकते हैं आप, k वैल्यू 1/2 भी ले सकते हैं आप। तो करस्पॉन्डिंग टू लैम्डा इज इक्वल्स टू 1, सॉरी लैम्डा इज इक्वल टू 6, यू मे गेट इनफाइनाइट नंबर ऑफ आइगन वेक्टर्स। इसमें अपन एक स्पेशल केस k इज इक्वल्स टू 1 लगा के एक वेक्टर निकाले। नहीं, अगर आप k इज इक्वल्स टू 2 लगा के वेक्टर निकाले तो कैसा बनती है वो वेक्टर? -4, 10. -4, 10। -4, 10 भी करेक्ट है, समझ में आया? अगर आप यहाँ पे -1 रखे तो ये 2 होता है, ये -5 होता, 2 - 5 भी करेक्ट है। ठीक है, तो डिफरेंट केसेस में आपको आइगन वेक्टर्स मिलते हैं, और पूरे आइगन वेक्टर्स करेक्ट, करस्पॉन्डिंग टू लैम्डा इज इक्वल टू 6 we may get infinite number of eigen vectors. So among this infinite we are getting one of them is -2, 5, -2 और 5, ये करस्पॉन्डिंग लैम्डा इज इक्वल टू 6 आ गया। इधर पार्ट का अगर आपको कंप्लीट हो गया तो फिर लैम्डा इज इक्वल टू -1 में आइगन वेक्टर कैसे फाइंड आउट करें बताता हूँ। समझ में आ रहा है आप लोग को, दोनों को भी? जी Yes, सर। जी। और रही बात फीस पे करने की, बुशरा अगर आपको अगर ऐसा लग रहा है कि पे करना है तो करो, नहीं तो कोई बात ओके सर। जी बोलिए। आप कुछ भी बोल दीजिए ना सर, क्लैरिटी सर, मेरे को मैं पेरेंट्स को इन्फॉर्म करना रहता। आपको पढ़ना है तो फिर मैं कुछ बोल सकता, फिर आपके पेरेंट्स ये ऑब्जेक्शन करेंगे ना, कॉलेज में पढ़ा रहे हैं फिर अलग से ट्यूशन की जरूरत क्या है। हाँ सर, इसलिए बोल दीजिए आप, अगर पे करना है या फिर ना, मैं पेरेंट्स को क्लैरिटी से बोल डाल सकती हूँ। देखेंगे, पहले आप पढ़ो तो सही, बाद में देखें। सर पहले ये ये बात x by -2 कैसा है सर? ये -2 ये बोल नहीं रहे हैं आप? नहीं ये नहीं सर, ये हाँ हाँ -2 x by -2 x by -2, ये x माइनस का, यहाँ पे ये जो x का कोफिशिएंट है उसको y से डिवाइड करना, y के कोफिशिएंट को x से डिवाइड करना। ओके। इसको देखिए फिर से अगर अपन क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये वापस यही बनता ना, अबव इक्वेशन। यस हाँ, is this part is over, shall we go for next? यस सर। So lambda is erase कर दो, अरिपा can I erase this part left side? यस सर यस। कॉलेज में क्या चल रहा है, कुछ इश्यूज चल रहे क्या, तो भी प्रॉब्लम, नहीं क्लासेस सर, नहीं हो रहे कुछ तो भी ऐसा क्या तो भी? क्लासेस हो रहे तो भी कौन भी क्लासेस में नहीं आ रहे सर, पूरे जने बाहर ही एंजॉय कर। नहीं, मेरा तो कुछ थोड़ा अलग प्रॉब्लम है। ओके। मैं तो मैक्सिमम छोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, मगर थोड़ा अलग इशू से स्टूडेंट्स से हमें नहीं बोल सकते। ओके, केस 2।
lambda is equals to -1. हाँ, तो we should write like this. Let capital X2 is equals to x comma y. X2 is equals to x comma y. Be the corresponding आइगन वेक्टर. मैं इसको थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहा हूँ. आइगन वेक्टर फॉर लैम्डा इज इक्वल्स टू -1. लैम्डा इज इक्वल टू -1. तो द फॉर्मूला इज a माइनस लैम्डा i इनटू, बोलो आप लोग बोलो, x2 into is equals to 0. equals to 0. ठीक है ना. तो इफ यू सब्स्टिट्यूट लैम्डा इज इक्वल्स टू -y, तो इधर साइड क्या मैट्रिक्स बनता जरा देख के बोले. यहाँ पे तो इरेज कर दिया. 2 2 minus 2 minus 5 एग्जैक्टली 2 plus 5. -2 -5 plus 5. Yeah. मगर आप लोग जरा दोनों भी कोई भी इश्यूज मत बनाइए. सर कॉलेज को नहीं आके घर में से पढ़ा रहे हैं ऐसा बोल के. No, Okay. sir. मैं मैक्सिमम सैटरडे आने की कोशिश करूंगा कॉलेज आके. 4th यूनिट जो पेंडिंग है, जो मेरी जिम्मेदारी है, वो कॉलेज से ऑनलाइन पढ़ा के 3 घंटे तो भी पढ़ा के 4th यूनिट के मैक्सिमम क्वेश्चंस को कवर करने की कोशिश करूँ. Okay. Okay, sir. कॉलेज आता हूँ मैं, आके ऑनलाइन पढ़ा दूँ. मगर क्योंकि पूरे स्टूडेंट्स को एक साथ क्लास में कोई भी क्लास ऐसी अपने को सफिशिएंट है नहीं, और वो बॉयज आ गए, थोड़ा डिस्टर्बेंस भी चलता, तो बेहतर है कि मैं घर से ही पढ़ा, सॉरी कॉलेज से पढ़ा देता हूँ मगर ऑनलाइन. R2 चेंजेस टू, यहाँ पे क्या करना है देखिए. मैं क्या कर रहा हूँ, आई एम गोइंग टू मेक इट दिस सेकेंड रो एज 0. इसके लिए एक ऑपरेशन अप्लाई कर रहा हूँ. देखो ऑपरेशन R2 चेंजेस टू R2 plus 5/2 into R1 plus 5/2 into R1. If you apply this operation, R2 is what? -5 plus 5/2 into 2. 2 cancel हो जाता, 5 minus 5 cancel हो जाता. So what about R2 becomes 0. So how this matrix will becomes? 2 minus 2 0 0. Yes, 2 minus 2 0 0 x y. So when simplify, 2x minus 2y minus 2y is equals is to equals 0, divisible by 2. X minus Yeah. y equals to 0. Implies we can say that x is equals to Y. y. Then what is the equation? What is the relation? X by 1 is One. equals to Y by 1 is y equals by to 1 is equals to, Hmm. suppose if you want to get K. the values, suppose it is k, so x is equals to k and y is equals to Y k. is equals Special to K. case, if k is equals to 1, then what about this vector, eigenvector x2 becomes 1 1. 1 1 1 1. तो 1. फिर आपका एक क्वेश्चन अराइज होता, सर स्पेशल केस आप k is equals to 1 क्यों ले रहे. आप 2 ले लीजिए, यहाँ पे 2 2 आता, 3 ले ले तो 3 3 आता, 0 ले तो 0 0 आता, -1 ले तो -1 -1 आता. तो पूरे आइगन वेक्टर्स करेक्ट ही है. तो करस्पॉन्डिंग टू लैम्डा इज इक्वल्स टू -1 यू मे गेट इनफाइनाइट नंबर ऑफ आइगन वेक्टर्स. तो ऐसा एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछने के चांसेस ज्यादा है. अभी तक कई पेपर्स में देखा जिसमें 2/2 मैट्रिक्स भी दे रहा आइगन वेक्टर्स आइगन वैल्यूज के लिए. तो मैं समझा कि चलो इसको भी एक करा देंगे क्वेश्चन. तो एक सैंपल क्वेश्चन था ये. इसको बेस बना के आप इस तरह के 2/2 के कोई भी क्वेश्चन रहने तो कर लीजिए आप लोग. Okay, sir. ठीक है, तो आप इसको कॉपी करें. तो मैं एक 3/3 का भी एग्जाम्पल बताता हूँ. थोड़ा मैट्रिसेस भूल गए ना, बहुत ज्यादा टाइम हो गया. क्या हुआ बिल्कुल.
Okay, it's completed. Yes, sir. Yes, sir. चलिए अभी अपन एक क्वेश्चन देखेंगे जिसमें 3x3 मैट्रिक्स है. तो क्वेश्चन आप लोग लिखे, फाइंड द आइगन वैल्यूज एंड करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर फॉर A is equals to 2, 2, 1, 1, 3, 1, 1, 2, 2. This is the matrix 3x3 मैट्रिक्स. कि कोई कंपलसरी रूल नहीं है. देखिए ये मैट्रिक्स एग्जाम में आता है क्वेश्चन बोल के. ठीक है, अपन एक सैंपल के जैसा क्वेश्चंस कर रहे हैं बेसिकली, राइट? अरीबा, कैन यू हियर मी? Yes, sir. तो अपने को ये मालूम नहीं है कि इसमें आइगन वैल्यूज रिपीट हो रहे या नहीं हो रहे, क्या है वो क्वेश्चन देखे तो सॉल्व करे तो अपने को समझ में आता. सो शैल वी स्टार्ट? Yes, sir. Step number 1, tell me The characteristic equation. the characteristic equation is A minus lambda is equals to 0. A minus lambda I under the mod equals to 0. So I think you know that when we are going to Yes, solve sir. this, there is a change in diagonal only. 2 minus lambda, lambda 2 2, 1, 1 1, 1 3 3 minus minus lambda lambda, 1 1, 1, 1 2, 2 2 2 minus minus lambda equal to 0. तो डिटर्मिनेंट प्रोसेस कर सकते हैं आप लोग का मालूम है ना, ये Yes, प्लस sir. माइनस प्लस रूल. Yes, sir. तो मैं डायरेक्ट लैम्डा वैल्यूज बता रहा हूँ आपको. एक केस में लैम्डा के वैल्यूज 1, 1, 5 आ रहे हैं. 1, 1, 5. तो अब यू कैन नोटिस हियर देयरफॉर द आइगन values आइगन वैल्यूज आर क्या है भाई? 1, 1 comma 1, 5. 1, 1, 5. 5. तो यहाँ पे दो आइगन वैल्यूज रिपीट हो रहे है ना. रिपीटेड Yes, आइगन sir. वैल्यूज बोल सकते हैं आप. तो डिफरेंट आइगन वैल्यूज के लिए रूल अलग है, अगर रिपीट हो रहे तो उसका रूल अलग है. तो अपन अब केस 1 सॉल्व कर रहा हूं मैं. केस 1, in the case when let us assume that capital X1 is equals to X, Y, Z be the corresponding eigenvector for lambda is Lambda equals is to 5. equals to पहले 5 ले रहा हूँ, 1, 1 के लिए बाद में करता हूँ. okay, sir. ठीक है, lambda is equals to 5 ले लेता हूँ. So if you put lambda is equals to 5 here, what is the rule? A minus lambda I into x1. into x1
equals to 0. So when lambda is equals to 5, what about this matrix becomes? -3. Exactly minus 3. 2 1 2 1 next -2. 1 minus 2 1 बराबर है yes sir. Yes, sir. 1 1 2 2 minus minus 3. 3 into, we are assuming this matrix as x 1 y z. z, and we know that zero or null matrix will be 0 0 0. now here you can see here, अब देखिए यहाँ पे कुछ ब्यूटीफुल रोज दिख रहे हैं आपको, क्या तो भी रिलेशन दिख रहा है उसके अंदर, ये 3 2 1 है, ये 1 2 3 है, 1 कुछ भी रिलेशन नहीं दिख रहा, ठीक है। यहाँ पे अगर अपन एक कोशिश करें रो ऑपरेशन बना के सॉल्व करने की तो पूरा घंटा लग जाता, फिर भी वो जीरो नहीं होता। तो ऐसे केस में आपको कुछ भी नहीं करना है, सीधा सीधा इक्वेशन बना के सॉल्व करना है। -3x plus 2y plus z equal to 0. Let us call it as equation number 1 is this one. Next x minus 2y minus 2y plus plus z equals to 0. This you can call it as a second equation. Next x x plus 2y minus 3z minus 3z equal is to equals 0. to 0. This is the equation number 3. 3. So we can solve it any two equations. The choice is yours. तो नॉर्मली डिफॉल्ट अपन क्या करते हैं, सॉल्विंग 1 एंड 2 करते हैं। Yes. सॉल्विंग 1 कौन सा भी दो इक्वेशन ले सकते हैं, देखिए फिर से बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि मैं अभी Okay. आपको क्या बताया था, फॉर लैम्डा इज इक्वल्स टू 5 यू मे गेट इनफाइनाइट नंबर ऑफ आइगन वेक्टर्स। हो सकता है आप 2 एंड 3 लेने के बाद कुछ और वेक्टर आता, मगर वो भी करेक्ट ही है, बोला ना अभी मैं। हाँ सर। हाँ, तो सॉल्विंग करते खुद आप प्रोसेस ये यूज करना, देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, x बाई सेकेंड एलिमेंट माइनस y बाई थर्ड एलिमेंट z बाई, नाउ AD माइनस BC, x वैल्यूज करते हो x के कोफिशिएंट्स को छोड़ के बाकी जो बच गया उसका डिटरमिनेंट करिए। 2 1 जा 2 माइनस इनटू माइनस प्लस अगेन 2 1 जा 2। नाउ फॉर y करस्पॉन्डिंग y के वैल्यूज छोड़ के फिर डिटरमिनेंट करें, -3 1 जा 3, ओके, -3 1 जा 3, 1 1 जा 1 Mine. बराबर। नाउ Yes, sir. हियर 3 2 जा 6 -2 1 जा 2, so what we are getting, X by 4. x by 4, numerator minus Equals denominator minus cancel, y by 4 Y by 4 is is equals to equals z to by Z by 4. 4. okay, 4 1 जा 4 1 जा 4 1 जा cancel, तो x is equals to 1, y is equals to 1, z is equal to 1। ये कैसा करें अपन, पहले तो 4 से डिवाइड कर दिया हमें, फिर इज इक्वल्स टू k Yes. अज्यूम कर लिए, फिर स्पेशल केस में k वैल्यू अगर 1 लिए तो आइगन, समझ में आए डायरेक्ट स्टेप्स ये। Yes, sir. हाँ, तो इट इज व्हाट 1 1 1। तो अपनी पहली आइगन वेक्टर आपको करस्पॉन्डिंग टू लैम्डा इज इक्वल्स टू 5 आ गया। अब थोड़ा उसको नोट डाउन कर लीजिए, लैम्डा इज इक्वल्स टू 1 मतलब रिपीटेड आइगन वेक्टर्स का कॉन्सेप्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप लोग इसको कॉपी कर लिए तो मैं एक साइड का इरेज करके बताता हूँ। कल अरीबा को मैं ऑलरेडी बताया था, शायद कंफ्यूज होंगे नो, तो फिर से एक बार बताता हूँ, अच्छा दिखता क्लियर। If you finish this first part, you can tell me.
Yes, sir. Completed. ठीक है. So remember this matrix because we are going to substitute now lambda is equals to 1 here. तो आप लोग डायरेक्ट बोलिए मेरे को क्या होता है. So now case 2 will be, let capital X2 is equals to X, Y, Z be the corresponding eigen vector for lambda is equals to -1 बोल के ऐसे ही लिखना है बस. -1 है, -1 is +1 है ना. हाँ, तो 1 लिखे तो ऑटोमेटिकली दो केसेस में कन्वर्ट हो जाता हो. तो आप देखिए अपना अब्दुल बारी बाहर जाओ बेटे प्लीज. अब्दुल बारी बाहर जाओ. तो लेट capital X is equals to, not X, it's X2 is equals to XYZ be the corresponding eigenvector for lambda is equals to -1. Lambda is equals, oh sorry, 1. Lambda is equals to 1. So now lambda is equals to 1. अब बोलो ही मेरे को मैट्रिक्स क्या बन जाता है. A minus lambda I into x2 is equals to 0. So when substitute lambda is equals to 1, what is this matrix becomes? 1 2 1 2 1. Next 1 1 2 2 1. next 1 2 1. 1 2 1 into X Y Z. Y Z is equals to 0 0 0. Now यहाँ पे देखिए कुछ ब्यूटीफुल रोज दिख रहा है आपको क्लियरली. Yes, sir. तो इसमें अगर अपन ऑपरेशन अप्लाई करें कौन सा, R2 changes to R2 minus R1 comma R3 changes to R3 changes to R3 minus R1. If we apply these two operations at a time, what about this? Our matrix becomes 1 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0. ठीक है, into X. Y, अच्छा, Z. अगर मेरा एक क्वेश्चन है, अगर सपोज ब्यूटीफुल रोज नहीं दिखे तो क्या करते हैं आप? Solve. बस सीधा इक्वेशन सॉल्व कर लेते बस. इक्वेशन सॉल्व. हाँ. Now what happened here? X plus 2y plus 2y plus Z is equals to 0 is the only equations we are getting. Otherwise दूसरे चांसेस कुछ भी नहीं है क्या? Yes. नहीं है ना? Right. तो आपको करना क्या है, इसमें क्या करना है, दो वैल्यूज को अज्यूम करना. Let us assume that Okay. y is equals to k1 comma z is equals to k2. ये y और z वैल्यू को अगर x में रखे तो x क्या बन जाता है? x plus 2k1 plus k2 equal is to equals 0. to 0. In this case, what is x becomes? Minus of 2k1 plus 2. माइनस के दोनों को Plus माइनस k. ही रहने दीजिए, माइनस ही रहने दीजिए. Okay. ओके. तो देयरफॉर फाइनली मैं थोड़ा अलग कलर से लिख रहा हूँ ना, यहाँ पे भी लिखे तो चलता ना. Yes, sir. Therefore, what about this? Our matrix becomes x y z Z is equals to minus हाँ बोलिए, माइनस 2k1 k1 minus माइनस k2. ये x की वैल्यू है, y की वैल्यू k1 k1 है और z की वैल्यू k2
K2। K2. अब इसमें से दो मैट्रिक्स ऐसा बनते हैं, देखिए आपको करना क्या है, पहले इसमें से एक बार K1 कॉमन ले लेना, उसके बाद में K2 कॉमन ले। अब देखिए अरीबा एक बार अच्छा देखिए, K1 अगर कॉमन लिए तो क्या बचता है इसमें, -2 -2। -K2 by K1। नो 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 नो, खाली K1 कॉमन ले रहे, K2 को भूल जाइए, आप जीरो कर दीजिए। ओके Okay. K1 अज्यूम करे खुद, K2 को जीरो अज्यूम करना, और K2 को कॉमन लिए खुद K1 को जीरो सपोज करना, ठीक है। ओके -2 1 0, 1 0। ठीक है। इसमें K1 कॉमन ले रहे ओके पूर्व में से, खाली K1 कॉमन ले रहे। अब ये पूर्व में से K2 कॉमन ले रहे, K2 कॉमन ले तो बोलिए -1 -1 0 1। 0 1। तो आपकी दूसरी जो आइगन वेक्टर आ गई वो क्या आ गई बोलिए, x2 बिकम्स, एक मिनट, what about your x2 becomes -2 1 0। 1 0। what about your x3 x3 becomes, -1 0 1। तो इस तरह से अपने रिपीटेड आइगन वेक्टर्स जिसमें लैम्डा वैल्यू रिपीट हो रही, उसके भी देखिए आप लैम्डा इज इक्वल टू 1 ईच लिए, मगर दो केसेस में आंसर आया, इसका मतलब लैम्डा की वैल्यू वहां पे रिपीट हुए, Yes. ठीक है। अपन स्टार्ट तो नॉर्मल यूजिंग केस 1 ईच करे अपन, लैम्डा इज इक्वल टू 1, मगर इसको सॉल्व करे तो दो वेक्टर्स आए, मतलब लैम्डा की वैल्यू वहां पे रिपीट हुई, ठीक है। और एक चीज क्या है, हिंट क्या है, जब भी कोई भी वैल्यूज लैम्डा के, whenever the lambda values are repeated, definitely 100% sure you will get some beautiful equations, and there is a possibility to apply the row operations and we can make it zero, ठीक है। ओके सर। या अगर हो सकता है कि इसमें एग्जांपल बता रहा हूं मैं, एज ए एग्जांपल, एक एग्जांपल देखिए आप, ऐसा हो सकता है कि अपन जब रिपीटेड वैल्यू लैम्डा के सॉल्व करें तो यहाँ पे कोई मैट्रिक्स आ सकता है लाइक दैट, और ये भी कोई एक मैट्रिक्स आ सकता, पर ये थर्ड रो अगर जीरो हो रहा, अब तो अपन क्या करना है, एक्लॉन फॉर्म में कन्वर्ट करना है मैट्रिक्स। एक्लॉन फॉर्म क्या है, मैक्सिमम हाँ, इंक्रीजिंग maximum, ऑर्डर ऑफ 0। यस, तो एक्लॉन फॉर्म में कन्वर्ट करके जीरोस के ऑर्डर को इंक्रीज करना, उसके बाद इक्वेशंस बनाना, ठीक है। ओके ये तो ये बहुत रेयर केस है भाई, ये रेयर केस है, मैक्सिमम ऐसे चाहता हूं, ठीक है, ओके। राइट ना, हेलो, हेलो, क्या हुआ भाई, व्हाट इज द प्रॉब्लम, क्या प्रॉब्लम है आपका, असाइनमेंट सबमिट करना है, कब सबमिट करना है भैया।